So, hi everyone, I'm Vaibhav Sharma from Team MCQ, and this is the session of Toppers Talk. We have with us Shivans over here, who got the CPWD. He have such an inspiration journey, and हम कोशिश करेंगे एक एक करके उन एस्पेक्ट को जानने का कि ये पूरी जर्नी को उन्होंने किस तरह से पूरा किया और क्या-क्या हर्डल्स और सेटबैक्स उनके लाइफ में रहे थे, जिनको ओवरकम करके वो यहाँ तक पहुंचे हैं. So first of all, Shivans, congratulations for getting a CPWD in SSC. Thank you, sir. So Thank you, Shivans, sir. कैसा लग रहा है आपको and how was your first reaction when you find your name in SSC JEE PDF list? Yeah, but it was very wonderful moment, and actually I was waiting for this moment for since long time. And when I saw the rank and the category, the department allotted, first of all I was confused. General category was 600 only, and the rank was showing 900 something. I thought, is this anything wrong printed? Then I confirmed you, and you on the spot told me, Yeah. and I realized. Then I was delighted, and then I called my mother. She was also happy. My reaction was also very good. So Shivans, बारे में कुछ बताइए, आप कहाँ से हैं और how your journey started? Sir, I am from Allahabad, UP, and sir, I have done my school and I have completed my BTech from KNIT Sultanpur, UP2 College, and I am passed out in 2022 this year only. And This is your final year? sir, then yes, sir, I have passed in 2022. Okay. So कुछ बेसिक अपने बारे में बताइए, पीछे जाते हैं हम आपके करियर में. अबाउट स्कूलिंग, आप कैसे स्टूडेंट थे? लाइक बिलो एवरेज, एवरेज, ऑलवेज टॉपर? हाउ इट्स कॉल स्टार्टेड इन स्कूलिंग? एवरेज से तो ऊपर था. एवरेज अच्छा ही था, मतलब सीरियस ही कैंडिडेट था थोड़ा. ओके. सो आफ्टर दैट यू एंटर्ड इनटू डिप्लोमा और बीटेक? नो सर, बीटेक वाज बीटेक. ओके. तो आपका बीटेक आपने कब स्टार्ट हुआ? सर मेरा 2018 में स्टार्ट हुआ, 2018 टू 22. ओके. सो आपकी बहुत कम एज रही होगी, आपने बिल्कुल पहले इसको क्वालिफाई किया है, ये एक बहुत बड़ी अचीवमेंट अपने साथ में है. सो स्टार्ट करते हैं 2018, जब एंटर करता है एक कोई भी एस्पिरेंट अपने कॉलेज करियर में, तो फर्स्ट ईयर से लेकर के और फाइनल ईयर तक आपकी सीरियसनेस क्या थी? आप केवल एसएससी जेईई टारगेट कर रहे थे, टीएससी भी आपके मन में था, या फिर एसएससी जेईई का कैसे आपका स्टार्ट हुआ? कुछ बताइए इस बारे में. So SSC JEE was not my target. Actually, when I passed out in 2022, there was lucrative vacancies. I saw them, and I think God was grateful at that time when I passed out, and He brought so many vacancies. I thought this is an opportunity, and so I should grasp it. So, sir, I started. Sir, my college ended in July. After all things. So I started approx in August. I came to Delhi. I thought that I will join Made Easy and do the preparation. Then vacancies came, notification came, and then I thought I should not join right now. I should continue with my previous hard work only and rely on that only. So I then started in August. Then many subjects were uncompleted, and if completed, also many topics were uncompleted, which were theoric portion or numerical portion also very much. Gate specific I have covered, not very much in that, like conventional or one-liner type also I have not covered that much in my college years. So when I started, I just completed 3 to 4 subjects also in a fast mode. In 2x speed, I just watched them all. And within 1 month, I completed all of them. Basic subjects like RCC, SOM, and STEAM. So I think one must complete in the beginning of his, preparation, because they are going to consume a lot of time, and it will create a hurdle at the last moment. So I think one should have a command on those subjects. Okay, so after being completed in 2018 July, you just came back to Delhi and you started preparation by your own. Yes. Instead of join any coaching institute. Sir, I have joined Made Easy right now in March. You have planned to join in March. If you are not selected this year, then upcoming year you will join the Made Easy. Okay. So it's a biggest initiative. Like anyone in the competition era thinks not joining any coaching institute, and instead of that preparing by its own. So who inspired you or who motivated you to get it started by your own instead of join any coaching institute? Sir, it was my failure in IT, I think so. Okay.
So it inspired you that you can do it by your own. That was also, I was not guided by anyone at that time also, because no one was from engineering background in my house also. And I also prepared in a local coaching just nearby my house, Okay. and it even did not complete the course in the name of the ITC. Yeah. So Okay. it was, I saw my colleague, my friends in ITs and all. I was very much disheartened at that moment. Okay. तो अपनी फैमिली के बारे में कुछ बताइए. How many siblings you are having and how do they work? Where are they now? Sorry, please, sir. About your family members. Okay, sir. Sir, my father is excise inspector. He is retired now. This is also motivation for me. Sir, they are retired, and I have to be with them at this time also. Hmm. I have to do something good as soon as possible. And I have four sisters, and all of them are married. Okay. Yes. So, okay, I'm right the now no youngest. one is your in engineering background in your house who can motivate, No, inspire no, you. sir, no, sir, no. Okay, No, sir, no. it's also a big thing. Okay, so I will start the thing. In SSC JEE, there are 3 sections. पहला टेक्निकल, जी दूसरा सर, जीकेजीएस और थर्ड इज रीजनिंग. जी सर. तो पहले आप मुझे बताइए कि टेक्निकल को आपने प्रिपरेशन करना कैसे स्टार्ट किया. फ्रॉम अगस्त टू नवंबर जर्नी रही थी, क्योंकि नवंबर में एसएससी ने अपना एग्जामिनेशन ले लिया था. तो इन 3 या 4 Yes, महीनों sir. को आपने किस तरह से यूटिलाइज किया. Sir, back to my college years, sir, I have prepared like gate point of type, numerical type. Theory portion I have not, if I have written also in notes, it was not in my brain, Hmm. theory portion and one-liner type. So whatever I have covered in YouTube and all, I have just made the notes, especially some subjects were left also, like so that transportation, railway, irrigation, these type of subjects were left at that moment time. So I completed all of them, and then the hurdle was to put all those one-liners and all in my brain in the short period of time, Yeah. 1 month. So I did nothing, and I just uh, brought textbooks subscription, and I gave mocks, as many of mocks I can give in a day. I think that 20 marks question, 20 question or 30 question wala jo set tha, I gave 6677 I gave, and one full length also I gave, just to make sure that all one liners are in my brain, because it was very difficult for me to remember all those one data, especially I would like to say data. I have joined library, and all the data I was very weak in learning all the RCC and those BMC data, especially BMC and all that IS code of irrigation and all, whatever they ask me right now, canal and के बारे में जो पूछने लगे आजकल. तो मैंने PYQ से उसको बस सॉल्व किया, और फिर टेक्स्ट बुक से जो भी मेरे को दिखता था कि ये है, टेबल है, वो है, तो मैंने क्या किया, वो टेबल की वैल्यूज वगैरह जो थी उसको जितने भी शॉर्ट फॉर्म में हो सकता था, उसको सारी वैल्यूज को लाइब्रेरी के डेस्कटॉप, अरे मतलब फ्रंट पे लगा दिया. सुबह उठते देखते वो डाटा को मैं जरूर देखता था, क्योंकि इतने डाटा फैक्चुअल आते हैं कि वो बहुत ज्यादा, वो अगर वो नहीं आता तो फिर वो हो जाता है ना कि काफी रैंक पीछे हो सकती है, मार्क्स नहीं आ सकते फिर. और जीएस तो मेरा वीक था ही बहुत ज्यादा, उसमें उम्मीद थी नहीं मेरे को. तो वही था. तो टेस्ट ओके, आफ्टर टेक्निकल में अटेम्प्टिंग तो द मैं. टेस्ट बुक टेस्ट, सपोज आपके सामने 20 क्वेश्चन है, यू अटेम्प्टेड 20 क्वेश्चन, जी सर. सपोज 12 गॉट राइट, 8 अभी जी गलत है. सर. तो उन 8 जो गलत क्वेश्चन है उनको आप क्या करते थे. यू राइट देम, यू गेट बुकमार्क, यू टुक स्नैपशॉट, उनके लिए स्ट्रेटजी क्या थी. No, sir, I didn't use bookmark. I don't used to get bookmark. I have made my copy. I have made one my different copy apart from all, and all the mistakes I used to do, and I used to one last pages of my copy. I used to write on all the mistakes I have done, and all the front pages I used to write all the new questions or whatever was out of the era. I used to write all of them, and it quite helped also me at the last moment of time. I used to read all those only things, and it helped very तो much. नोटबुक में आपने सारे सब्जेक्ट वाइज उसको लिखा था या फिर क्वेश्चन वाइज एक के बाद एक मॉक टेस्ट No, के वाइज no, आप no, लिख रहे no, sir. Subject wise, approx 10 to 12 pages I have allotted to each subject, थे. ओके and subject wise I used to note down all those things. ओके. सो टेस्ट बुक पे आपका स्कोर क्या रहता था आउट ऑफ 200 विद द मॉक टेस्ट. Sir, one जितना मेरा प्रीलिम्स में आया था 125 उसी के आसपास ही रहता था. ओके, 120, तो आपका एसएससी जेईई 125, प्रीलिम्स में स्कोर कितना है इस 130. बार. Sir, 125 था मेरा. 125 एंड यू आर फ्रॉम Yes, एससी sir. कैटेगरी आई थिंक. No, sir, general category. जनरल कैटेगरी. ओके, इट्स नाउ बिगेस्ट थिंग जी राइट sir. नाउ because 125 prelims
you are and you are getting the CPWD. What was your rank in civil category? Sir, civil category, sir, 913 that rank, and 913. you have written yes 913. No. It's your overall rank, I think. Yes, sir, overall rank, overall No, rank. in civil category. Have Sir, you checked civil that? category, sir, 300 something, sir, 300 300. something. I am Okay. not remembering. Okay. So it's a real decent score. If I want to conclude, Okay. your marks in the mains should be around 230 to 35. Okay. Then Okay. you can cross the 350 score of na CPWD na. That's Yes, why sir. I'm calculated like that. Okay. So how much marks you have attempted in SSC JEE mains? Sir, means I have attempted 270 sure cut I have attempted, and the excavation question, embankment question wala. Sir, I have written all things, but it was not correct, I think. But it was right to some extent. Not fully it was correct, not fully it was wrong. And in recuperation test, sir, I have written formula that was wrong. Okay. The first line was only wrong. सो एसएससी जेई प्रीलिम्स के लिए आपने बताया कि आपने ज्यादा से ज्यादा मॉक टेस्ट दिए, प्रैक्टिस पर आपका फोकस था, Mock test day और and night I used to give mock test only. जो भी डेटा आपका नहीं होता था यू शुड टू डू राइट ऑन द नोटबुक. That data was very problematic. I used to Okay. full library, my desk, all three corners. Yeah. So Shivans, my next question is, how you manage SSC JEE mains preparation? What are your strategy, your sources, and your test series you followed? Sir, I started with RCC, and sir, I used to do all the design with 1 month. I did 15 days approximately of the starting days. I devoted to RCC, and all the design steps I wrote down in a paper. Not only for RCC or for whole the mains, all the subjects. I wrote all the design steps and all the memory, what all the steps you need to take for doing a particular type of question. I just note down all those things in the paper in a single copy, about 100 pages. I note all the subjects for all steps. मैंने एक जगह फिर लिख लिया पूरा सारे स्टेप्स, हर एक क्वेश्चन के जैसे जैसे वो सॉल्व होते हैं, तो मैंने लिख लिया एक फिक्स अप्रोच, जैसे टाइम सेव हो, तो मैंने वो लिख लिया थोड़ा सा. तो फिर सबसे पहले मैंने आरसीसी से सर स्टार्ट किया, तो सर उसका मैंने पूरा लिख लिया, और फिर आरसीसी का सर विगरस सर प्रैक्टिस करनी पड़ी सर, बहुत टाइम लेता था, वरना पुटिंग का क्वेश्चन 1 घंटा लेने लगता था. तो सर मैंने फिर उसका फिर जल्दी जल्दी उसको फिर कमान बैठाई, फिर स्टील को फिर ज्यादा प्रैक्टिस करने की कोशिश किया. स्टील और आरसीसी को मैंने स्टील आरसीसी और मैं स्ट्रक्चर पढ़ा नहीं था, कन्वेंशनल टाइप से तो नहीं पढ़ा था एकदम भी, तो मैं थोड़ा स्ट्रक्चर को ही पढ़ा. फिर लास्ट में पता चला सिलेबस में ही नहीं आता ज्यादा. जब मैंने पीवाई को उठा के देखा, उसमें देखा सिलेबस ये तो आ ही नहीं रहा है इसका, मैंने क्यों टाइम वेस्ट कर दिया. उसके बाद सर स्ट्रक्चर्स और फिर सोम, ये 4 सब्जेक्ट मैंने पहले उठाए और इनको मैंने कवर किया पहले. तो सर फिर इस पर मैंने कमांड बैठाई. उसके बाद फिर मैंने एनवायरनमेंट को उठाया, थोड़ा मेरा वो वीक था थोड़ा सा एनवायरनमेंट, तो फिर उसको उठाया, लेकिन उसमें मैंने सेलेक्टेड टॉपिक्स ही पढ़े थे और रिकॉर्पोरेशन छोड़ दिया था. लास्ट में जाके वो भी आ गया. और फिर यही किया. उसके बाद फिर सॉइल तो ठीक था मेरा, बहुत प्रॉब्लम नहीं किया सॉइल. फिर यही था. फिर इरिगेशन वगैरह छोटे छोटे सब्जेक्ट्स जो थे, उनका जो एक फिक्स्ड टाइप के पैटर्न के क्वेश्चन आते हैं, या तो उधर से आएगा कटर वगैरह से आ रहा है, या तो लाइन डीसी वगैरह, उन सब पे स्टेप्स याद कर लिया. तो फिर वो ओवर टर्निंग या उन सब का डैम वगैरह का था, स्टेप्स हैं, एक प्रोसीजर है फिक्स्ड, और उधर पहले से भी है क्रॉप डेल्टा ये सब ड्यूटी वगैरह का, उन सब का तो है, वो भी फिक्स्ड ही अप्रोच है उन सब की भी. तो सर मैंने लिमिटेड सोर्स रखा था, केवल 2 चीज, मैंने 3 चीज प्रेफर किया था. एक ईएससी के मेंस के क्वेश्चन, एसएससी जेई के मेंस को क्वेश्चन, और टीम एमसी का टेस्ट सीरीज. 3 के अलावा मैंने कुछ नहीं छुआ है, और इतना ही लिमिट करके रखा. नहीं तो नए क्वेश्चन की वैरायटी भी बहुत ज्यादा नहीं टच की, क्योंकि टाइम बहुत ज्यादा कम था, और बहुत ज्यादा मेरी अच्छे से कन्वेंशनल की अप्रोच भी नहीं थी, मतलब कम ही थी, प्रैक्टिस तो एकदम ही नहीं थी. तो फिर मैंने 3 जो महीने थे उसमें जितना हो सके बस पीवाईक्यू लगाता था, और टीम एमसीक्यू के टेस्ट से पूरा कवर हो जाता था. मैं लैब काम कर रहा हूँ, स्पीड पूरा यही सब था, बस उसको एनालाइज करता था, पीवाईक्यू लगाता था. ज्यादा इधर उधर का नहीं देखा कि मतलब कौन सा क्या है, नए टाइप का क्वेश्चन क्या है, उस टाइप का मैंने नहीं देखा. मैं कहा आना होगा इसी से फंस जाएगा, वरना जाएगा. ओके. सो टेल मी द वन थिंग कि आपने जो प्रिपरेशन में कंक्लूड किया वो ये था कि जितने भी डिजाइन स्टेप थे
आपने पहले उनको नोटबुक में लिख लिया, यू यूज टू रिवाइज देम अगेन एंड अगेन। अगली चीज ये कि आपने एसएसबी वाईक्यूज को मल्टीपल टाइम्स किया, ताकि आपका जो बेसिक जी नॉलेज सर। है और जो चीजें हैं वो ग्रैस्प हो जाए उस पर। और इसके जी अलावा जी। आपने केवल एक टेस्ट दिया टीम एमसीक्यू और उसी को फॉलो किया रेगुलरली। वो तो क्या। ओके, तो मेरा यस सवाल ये है सर। कि आपके मार्क्स कितने आते थे एमसीक्यू टेस्ट सीरीज में, फुल लेंथ टेस्ट सीरीज में? सर स्टार्टिंग में तो मैं स्टार्ट ही किया था, मुझे ज्यादा नॉलेज नहीं था ना, मुझे सॉल्व करने की आदत थी ना कुछ थी, तो 50 और मेरे कॉन्सेप्ट भी नहीं क्लियर, मतलब वो नहीं था, मतलब लिखा था भूल गया था या तो प्रैक्टिस नहीं थी। 50 नंबर आ रहे थे, फिर 90 आए किसी तरह। फिर बेसिक बेसिक क्वेश्चन भी गलत हो जा रहे थे, कुछ कर ही नहीं पा रहा था, मैं क्या ही हो रहा है, 2 महीने में क्या करने वाला हूँ मैं। हाँ। लेकिन फिर यही था कि मैंने आरसीसी और स्टील पहले कर लिया था, थोड़ा सा मुझे एडवांटेज मिला। वही मैंने दिसंबर में ये कंप्लीट कर लिया था, फिर जनवरी में मैंने और सब्जेक्ट्स को स्टार्ट किया जितने भी थे। दिसंबर में केवल मैंने आरसीसी और स्टील और सोम और स्ट्रक्चर किया था। तो फिर मुझे फिर वो लीड मिली, फिर उसके बाद फिर मैं जल्दी जल्दी फिर उसके बाद जो टेस्ट सीरीज होने लगे, फिर मेरे रैंक कुछ। हाँ हाँ, सुन रहा हूँ, साउंड आ रहा है, नॉट ऑडिबल। हेलो। यस, आई थिंक इट्स ऑडिबल नाउ। हेलो। हेलो। यस यस सर, ऑडिबल। यस सर, यू आर ऑडिबल। ओके, सो आपके जो मार्क्स थे, इट इट गॉन 50 टू 200 प्लस। सर 239 आया था लास्ट में तो। 239, इट्स अ गुड स्कोर। ओके, सो आप कुछ बताना चाहेंगे कि हाउ वाज योर टेस्ट एक्सपीरियंस, लाइक पेपर ऊपर था एसएससी जेई के ऊपर से, या फिर एसएससी जेई को मैच कर रहा था, या फिर हाउ यू सर थिंक? पेपर एग्जैक्टली मैच करता है लेवल को, ना अंडर एस्टिमेट करवाता है एस्पिरेंट को, ना ओवर करने लगता है मैं उड़ रहा हूँ या तो दबी जमीन पे हूँ, इस टाइप से ओवर जो हकीकत है वही दिखाता है। मतलब तो और बेस्ट एनालाइज करने के लिए, मतलब जो भी है वही आएगा उसके, नहीं हल्का सा दो मतलब 20% एक्स्ट्रा रहेगा, वो जरूरत भी है उस समय के लिए, वरना तो वही रिपीट तो नहीं होता कुछ, वो तो इस बार कर गया 22 लाख थोड़ा बहुत सारे, वरना तो हर तो बार आपके रिपीट नहीं 239 होता। मार्क्स थे मेंस टेस्ट सीरीज में, और मुझे लगता है कि आपके मेंस से भी शायद इतने ही मार्क्स रहे होंगे, 235 टू 90। नहीं सर। ओके, मे भी। सो एक बहुत बड़ी बात है कि जो आपके टेस्ट सीरीज में मार्क्स आ रहे हैं वही एक्चुअल में आपके मेंस में मार्क्स आने वाले हैं। तो आप जो टेस्ट हैं आप उसको ऑनेस्टली दें, क्योंकि वही मार्क्स वही परफॉर्मेंस आपके एक्चुअल में भी रिफ्लेक्ट होने वाली है। ओके, सो माय नेक्स्ट क्वेश्चन इज दैट यू गॉट सेलेक्टेड इन एसएससी जेई। अगर आपका सिलेक्शन नहीं यस होता तो आप क्या करते हैं? सर, मेड इजी मैंने इसलिए ज्वाइन कर लिया इस बार, मतलब वो तो सोचा नहीं था क्या करना है क्या नहीं करना, वो तो मुझे तब भी नहीं पता था, फिर जब मौका मिला था तो मैंने सोचा चौका मारो पहले, उसके बाद कुछ करते, जॉब एक सिक्योर करो पहले। हम्म, आपकी प्लानिंग थी फिर नेक्स्ट ईयर आप मैंने प्रिपरेशन करते कहा हो और फिर आप आपको अपग्रेड करते हैं अपकमिंग एग्जाम्स के लिए। यस सर। सर टारगेट तो यूपीए ही था पहले तो, गेट मुझे उतना lucrative लगता नहीं है, पता नहीं क्यों, इसलिए पहले तो यूपीए सर। ओके, सो माय नेक्स्ट क्वेश्चन टू यू इज कि आगे के आपके क्या प्लान रहे होंगे? यू आर नॉट गेट सिलेक्टेड एसएससी जेई, तो अपकमिंग में कोई एग्जामिनेशन आप लिखेंगे, या फिर इट्स लाइक कि अभी मुझे अपनी प्रिपरेशन ऐड करनी चाहिए? सर ईएससी एंड यूपीए टू आप उसके लिए एग्जाम्स। प्लानिंग कर रहे हैं? ओके, सो हैव यू अपीयर्ड इन गेट एग्जामिनेशन दिस ईयर? यस सर, हुआ था लेकिन मैंने मैथ्स छोड़ दी लास्ट मोमेंट पे, तो थोड़ा मैथ्स में मतलब आई थी 1900 रैंक आई थी, लेकिन उसमें मैथ्स में मेरा -1 था, वो मैथ्स मैंने क्यों छोड़ दिया था, बहुत दिन से छोड़ दिया आपका रैंक क्या था, 319? था। नहीं 1 नहीं। ओके ओके, सो नाउ गिविंग थिंग्स इज ओके। ओके, सो नाउ माय नेक्स्ट क्वेश्चन इज कि जो बाकी लोग प्रिपरेशन कर रहे हैं और खुद से पढ़ना चाह रहे हैं, बगैर कोई कोचिंग को ज्वाइन नहीं करना चाह रहे हैं, या फिर बहुत सारे लोगों का इस बार सिलेक्शन नहीं भी हुआ है, बहुत अच्छा उन्होंने प्रीम्स दिया है, 140 145 मार्क्स के बाद में वो सिलेक्टेड नहीं हो चुके हैं, और उनके लिए कोई मैसेज देना चाहेंगे या फिर कुछ बताना चाहेंगे कि
वो किस तरह से अपने आप को इम्प्रूव कर सकते हैं इस डोमेन में? सर नॉलेज सबकी ज्यादा इक्वल है या ज्यादा ही है, मेरे से तो मुझे लग रहा था उस समय से भी, क्योंकि सबके बहुत अच्छे अच्छे मार्क्स आ रहे थे उस समय, मैंने देखा था टॉपर्स के। और कई सारे लोगों का लिस्ट में नाम नहीं है, इसका ये मतलब नहीं है कि सर उनका कहीं मतलब वीक है या कुछ है, वो होता है ना डे, जो डे होता है उस दिन में भी वो नहीं सही रहा होगा, क्योंकि किसी को नॉन यील्डिंग नहीं दिखा, अनयील्डिंग नहीं दिखा उस दिन, हम्म। किसी को कुछ नहीं दिखा, वो लक पे भी डिपेंड कर जाता था। तो ये नहीं, वो 15 नंबर पे तो इस बार पूरा खेल हो गया है। हम्म। तो वो वही है कि सर वो लक मतलब वो वही है, दिन नहीं होता किसी का, इसका ये मतलब नहीं कि सर उसकी नॉलेज में कमी है या कुछ हुआ है, मेरे ख्याल से तो नहीं है सर। तो सर उसको प्रैक्टिस मतलब करते रहना चाहिए, मतलब सर वो नहीं, वीक नहीं है किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम पे, मतलब बहुत नॉलेज है, बस यही है जब लक और एक्यूरेसी और हार्डवर्क सब एक साथ तो कॉम्बिनेशन होता है तब हम्म। तब सिलेक्शन गॉड चांसेस गिफ्ट बढ़ देता जाते है। हैं। ओके, तो मैं कंक्लूड कर रहा हूँ चीज़ों के साथ में, जितने भी एस्पिरेंट हैं जो इस बार ड्रीम डिपार्टमेंट को नहीं ले पाए या फिर सिलेक्शन नहीं ले पाए, उनसे बस मेरा और शिवांश का भी कंक्लूजन यही है कि देखिए, लाइफ का पार्ट है, किसी को फर्स्ट अटेम्प्ट में सक्सेस मिल रहा होता है जैसे शिवांश को मिला, और किसी को 6 या 10 अटेम्प्ट तक भी नहीं मिलता है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप गिव अप करके अपने आप की प्रिपरेशन को गिव अप कर दें, बंद कर दें और अपने आप को कमतर समझने लगे, क्योंकि कई बार समय आपके खिलाफ में चल रहा होता है। आप कमजोर नहीं होते, आपका समय खराब रहा होता है। तो उस वजह पर उस बीच में आपको खुद को समझाना होगा, आपको खुद को प्राउड फील कराना होगा, कहना पड़ेगा यू आर स्टिल ए चैंपियन, और यहाँ से बाउंस बैक करके वापस से आप अपने एग्जाम पर लिख सकते हैं और अपना ड्रीम डिपार्टमेंट ले सकते हैं। कुछ और चीज भी हम इस टॉक से सीख सकते हैं कि शिवांश ने बहुत लिमिटेड रहे प्रिपरेशन को लेकर। जैसे बाकी लोग 2 या 3 4 5 टेस्ट लिख रहे होते हैं, या फिर ईएससी मेंस लिख रहे होते हैं, सिविल सर्विसेज कन्वेंशनल क्वेश्चन लिख रहे होते हैं, इन्होंने बहुत ही लिमिटेड और टू द पॉइंट स्ट्रेटजी को फॉलो किया, जो कि ओवरऑल इनकी हेल्प किया लास्ट में रिवाइज करने में, क्योंकि इन्होंने अपने आप को सबमिट लिया था और जो इनके मार्क्स से टेस्ट में वही एक्चुअल में रिफ्लेक्ट हो रहे थे, और अपनी इंप्रूवमेंट ये लगातार करते चले गए, जो कि इनकी हेल्प किया। इसके अलावा जो भी लोग ये सोचते हैं कि सर बगैर कोचिंग के हमारा सिलेक्शन नहीं हो सकता, हम तो इसी साल पास आउट हुए हैं, हमारे पास सोर्सेज नहीं है, हमारे पास पैसा नहीं है, कोचिंग नहीं कर सकते तो सिलेक्शन नहीं हो सकता, तो ये सारे एक्सक्यूजेस के लिए एक बेस्ट एग्जांपल शिवांश साहब के सामने है, जिन्होंने कोचिंग नहीं किया, कुछ भी नहीं किया, कॉलेज के साथ फाइनल ईयर में सीपीडब्ल्यूडी निकाला है, और जबकि प्री में इनका मार्क्स बहुत कम था, सारा फोकस मेंस में इन्होंने लगाया था। तो ये एक अपने आप में एक इंस्पिरेशन जर्नी है। आई ऑल्सो फील वेरी इंस्पायर्ड टू टॉक टू हिम, और आई आई थैंक यू आई वांट टू थैंक टू हिम कि इन्होंने अपना समय यहाँ पे दिया और इस सर, टॉक के लिए बाकी लोगों के साथ में थैंक यू क्लिक किया आपके है। लिए सर। सो आई थिंक इट वाज जर्नी अ में ग्रेट पूरी गाइड एक्सपीरियंस। आपने किया जी। तो अब एक बार कुछ टीम्स के बारे में बताना चाहेंगे, हाउ यू फाइंड द एक्सपीरियंस एंड गाइडेंस? इट वाज ओके अप टू द क्वालिफाइंग एसएससी जेईई मेंस? पर नॉट ओके, इट वाज मोर नेक्स्ट लेवल ओके। मोर देन सफिशिएंट। सर ओके। मतलब एक होता है ना, मतलब जहाँ पे इंसान फंस रहा है वहां पे भी सहारा जहाँ मिलता है वहां पे, मतलब ग्रुप पे कहीं पे भी तुरंत रिप्लाई आ जा रहा है, मतलब जहाँ पे भी इंसान को डाउट हो रहा है या जहाँ पे भी फंस रहा है, तो वो और तो कहीं नहीं मिलेगा मेरे ख्याल से। हम्म। तो आई थिंक तो एसएससी हर जेईई स्टेप मेन पे, की चाहे प्रिपरेशन सिलेक्शन से में पहले हो चाहे सिलेक्शन के बाद हो, इवन सिलेक्शन के बाद भी मैंने कितने सारे डाउट पूछे, सिलेक्शन के पहले ही पूछा है, वो हर पे हर मोमेंट पर रिप्लाई तो आया है। हम्म, तो आई थिंक एसएससी जेईई की मेन की प्रिपरेशन में दो चीजें इंपॉर्टेंट रही होती हैं। पहली चीज तो यह है कि आपको गाइडेंस मिल जाए कि आपको चलना कैसे थ्रू आउट द प्रिपरेशन में, और दूसरी चीज, जो भी आपके डाउट्स आ रहे हैं कि इसको कैसे सॉल्व करना है, कौन सा आंसर सही है, या फिर क्या लिखने पर क्या मार्क्स मिलता है, ये दो चीजें ही एसएससी मेंस में इंपॉर्टेंट रही होती हैं। बाकी एक्यूरेसी और टाइम मैनेजमेंट आपको टेस्ट से सिखाई देता है। तो आई थिंक अगर आप इतना कवर अप कर लेते हैं तो यू कैन ऑल्सो गेट रैंक लाइव शिवांश, और ये अपने आप में एक अच्छा सेटबैक है। सो अगेन आई वांट टू गिव यू ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर अपकमिंग जर्नी, फॉर ज्वाइनिंग सीपीडब्ल्यूडी। आई थिंक अपने आप को एक्सप्लोर करें और कंट्री के लिए एक बहुत अच्छा इंजीनियर आप बन करके उसको सर्व करें। और टीम एमसीक्यू के साथ में और मेरे साथ में जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। हैव ए नाइस डे। थैंक यू सर।